మీరు మీ కథలు చెప్పినప్పుడు అదే పెద్ద కష్టమేం లేదులే, మేము బాగానే ఉన్నాము అని ధైర్యం చెప్పి ఎంబీ ఫౌండేషన్కి, అధికారులకి, అందరికీ మీలో ఉన్న బాధ ఏవైతే ఉంటే అది మీలోనే దాచి ఇతరులకు చెప్పకుండా ధైర్యం ఇచ్చి మీరు వెళ్ళండి, పోరాడండి, మేము కూడా పోరాడతాము, మేము కూడా పిల్లల్ని తీసుకొస్తామన్న ధైర్యం మీరేమైతే ఇచ్చారో ఆ ధైర్యం మీద ఇది ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. దేశంలో, ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి పిల్లవాడు, ప్రతి పిల్ల వాళ్ళ బాల్యాన్ని అనుభవించేదాకా మీ ధైర్యం మీద, మీ స్ఫూర్తి మీద ఈ కార్యక్రమం జరుగుతూనే ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. పిల్లలు పిల్లలు మనం ఎంత నియతో, ఎంత కరెక్టో, ఫైల్ పోయింది పోయింది ఫైల్ పోయింది అని చెప్పగానే దొరికింది అని వచ్చేసింది. అండ్ ఇంకొకటి, ఈ మధ్య గ్రూప్ లో నేను చెప్పేటప్పుడు ఆదిలాబాద్ టైగర్స్ గురించి చెప్పలేదు. ఆదిలాబాద్ చప్పట్లు, ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు అందరూ కొట్టాలి చప్పట్లు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు ఆదిలాబాద్, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, ఈస్ట్ గోదావరి, కడప, చిత్తూరు, నల్గొండ, కర్నూలు, రంగారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్, హైదరాబాద్, వరంగల్, అస్సాం, తమిళనాడు, మధ్యప్రదేశ్, బీహార్, మహారాష్ట్ర, నెదర్లాండ్స్. థ్యాంక్ యూ. ఈ 20 సంవత్సరాల ప్రస్థానానికి ముందు మేము ఇంకొక చిన్న ప్రక్రియ మొదలుపెట్టాం. 16వ తేదీన 75 మంది పిల్లల్ని, పెద్దవాళ్ళని ఇక్కడి నుంచి సబర్మతి ఆశ్రమం తీసుకెళ్ళి వాళ్లకు గాంధీ ఆశ్రమాన్ని, ఆయన జీవించిన విధానాన్ని అవన్నీ ఒకసారి చూపించాలనుకున్నాము. వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్ళి వచ్చారు. వాళ్ళందరికీ ఇదే మాకు అందరు వాళ్ళ తరఫున చప్పట్లు కొడదాం. మన వాలంటీర్లందరూ గాంధీ సిద్ధాంతాలు పాటించిన వాళ్ళే. ఆయన అట్లాంటి సిద్ధాంతాలని అది ఎప్పటికైనా ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరమే కాదు, ఆయన పోయి 50 సంవత్సరాలైనా 100 సంవత్సరాలైనా ఇంకొక 1000 సంవత్సరాలకైనా గాంధీ సిద్ధాంతాలు మనకు వర్తిస్తాయి. అట్లాంటి సిద్ధాంతాలను పాటిస్తూ ఈ దేశాన్ని, ఈ సమాజాన్ని మార్చవచ్చు అనే నమ్మే చాలా మందిలో ఒకరు స్వామి అగ్నివేష్ గారు. ఆయన ఇవాళ ఉన్నారు. ఆయన మనకు ఆయన సందేశాన్ని అందిస్తారు. నేను తెలుగులో చెప్తే బాగుండేది. మళ్ళీ నాకు తెలుగు అంత బాగా రాదు. కాదు ఉపన్యాసం చెప్పలేను. కొంచెం అర్థం అవుతుంది. మీరు మాట్లాడితే నాకు అర్థం అవుతుంది. నేను ఉపన్యాసం చెప్పలేను. దానికోసం నేను హిందీలో మాట్లాడతాను. मेरे नौजवान दोस्तों और साथियों, आज हम 20 साल की एक साधना के बाद, एक तपस्या के बाद और एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति का अवगाहन करने के बाद इकट्ठे हुए हैं। 20 साल पहले का जो सपना था वो किसी को विश्वास नहीं हो सकता था कि 20 साल के इस साधना से, इस तपस्या से, संघर्ष से 10 लाख बच्चे बाल मजदूरी से मुक्त होकर के शिक्षा की मुख्य धारा में आ जाएंगे। 20 साल पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनमें से बहुत से बच्चे जो गरीबी की रेखा के नीचे, जो दलित परिवार से, जो आदिवासी परिवार से, और हमारी बेटियां जिनके पैरों में समाज की बेड़ियां पड़ी हुई हैं, वो आज़ाद होंगी और वो आज 20 साल की उपलब्धि का ये जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हो पाएंगे। लेकिन 20 साल की अनवरत साधना और शांता सिन्हा जी का नेतृत्व, वेंकट रेड्डी जी का सहयोग
और पराक्रम और हमारे विक्रम भाई का अपूर्व योगदान, इन तमाम साथियों ने मिलकर के आज हमें एक उत्साह दिया है, एक उम्मीद की किरण दी है। आज ऐसा लग रहा है यदि सही दिशा में सही कदम उठाया जाए तो देश बदल सकता है, समाज में क्रांति आ सकती है। मैं इसको एमवी फाउंडेशन के इस उपलब्धि को एक सामाजिक क्रांति कहूंगा। इट्स ए सोशल रिवॉल्यूशन। और इसके लिए शांता सिन्हा जी से लेकर के एक एक बेटी, एक एक बेटा मेरा जो यहां पर बैठा है, नौजवान साथी, वो सब बधाई के पात्र हैं। आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। आप सब ने मिलकर के इस सपने को साकार किया और आगे के लिए सपना देखने की तैयारी की है। आज हम इकट्ठे हुए हैं, केवल ये नहीं कि पीछे मुड़ करके खाली देख लिया कि बहुत अच्छा काम हुआ, नहीं, आगे अभी मंजिल बहुत दूर है। 10 लाख बच्चे बाहर निकले, लेकिन अभी करोड़ों बच्चे बाल मजदूरी में पड़े हुए हैं। एमवी फाउंडेशन ने शुरुआत में और हमने बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने बहुत पहले यह फैसला किया कि जो बच्चे स्कूल में नहीं है, पढ़ने नहीं जाते, खेलने नहीं जाते, मस्ती नहीं करते, वो बच्चे जरूर बाल मजदूर हैं। और हमने तो कहा था वो बाल मजदूर नहीं है, बाल बंधुआ मजदूर हैं। They are not just victims of child labor, they are bonded child labor, they are child slaves। जिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं मिल रही, खेलना कूदना सपना देखना नहीं मिल रहा, जिनका बचपन छीना जा चुका है, वो बच्चे बंधुआ मजदूर हैं, गुलाम हैं। यदि आज की तारीख में हम सरकार से पूछ करके बताएं कितने बच्चे ऐसे हैं जो 5वीं 6वीं से पहले ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल छूट जाता है, तो सरकार पूरी बेशर्मी से स्वीकार करेगी कि लगभग 10 से 12 करोड़ बच्चे, 10 से 12 करोड़ बच्चे आज हिंदुस्तान में 5वीं 6वीं तक ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल छूट जाता है। बहुत पहले शांता सिन्हा जी ने कहा था ये ड्रॉप आउट नहीं है, ये पुश आउट है। इनको ढकेल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ये सिस्टम ऐसा है, इसमें छोटी जात में पैदा हो जाना अभिशाप है। दलित के घर में, आदिवासी के घर में पैदा हो जाना, पिछड़ी जाति में पैदा हो जाना और बेटा ना हो करके बेटी पैदा हो जाना, ये सब चीजें अभिशाप है। ये हजारों साल से चली आ रही रूढ़ियां, इन बेड़ियों को हमें तोड़ना है और तोड़ने का संकल्प लेकर के आगे की एक व्यूह रचना करनी है। आज मैं देख रहा हूं कि एमवी फाउंडेशन जो रंगारेड्डी जिला, महबूब नगर और इन पड़ोसी गांव से चला था, महबूब नगर इधर से, आज वो सुदूर अफ्रीका में पहुंच गया, युगांडा में पहुंच गया, ग्वाटेमाला में, लैटिन अमेरिका में पहुंच गया। पूरे देश और दुनिया के अंदर एक आशा की किरण इसने पैदा कर दी। कोई आपस में लड़ करके भिड़ करके ऐसा नहीं, सबका सहयोग लेकर, सरकारों का भी सहयोग लिया, टीचर्स का सहयोग लिया, ग्राम पंचायत का सहयोग लिया और परस्पर सहयोग से एक रास्ता निकाल करके एक सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। मैं आज आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आओ नौजवानों, हम और आप सब मिलकर के एक आगे का सपना लेके, कि पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हमें एक सामाजिक क्रांति लानी है। और सामाजिक क्रांति की वो कदम जो है वो हमें अपने देश से, समाज से शुरू करना है। हमें हर बच्चे के लिए समान शिक्षा, कॉमन स्कूल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार,
वो कागज पर लिखा हुआ है लेकिन वो अभी प्राप्त नहीं है। इसी हैदराबाद में जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वो बच्चे वो बढ़िया पब्लिक स्कूल में नहीं जा सकते। क्यों? वहां पर फीस ज्यादा है, वहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, ऊंची जात के लोग जाते हैं। ये अमीर गरीब के बीच की खाई हमें पाटनी होगी। गांव और शहर के बीच की दूरी को हमें खत्म करना होगा। ऊंची जात और छोटी जात के बीच की दूरी खत्म करनी होगी। बेटा और बेटी के बीच में समानता लानी होगी। इसलिए पूरे भारत का एक नया निर्माण हो, इसलिए मैं इसका नाम देना चाहता हूं एमबी फाउंडेशन के 20 सालाना इस उपलब्धि के अवसर पर आइए हम और आप मिलकर के एक महाअभियान शुरू करें और उसका नाम होना चाहिए भारत महान महाअभियान। एक महान भारत बनाएंगे हम। उस महान भारत में 10 साल लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 60 साल तो नहीं लगेंगे, 65 साल तो नहीं लगेंगे। और 65 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को खड़े होकर के ये राष्ट्रीय शर्म नहीं कहना पड़ेगा कि मेरे देश में 42% बच्चे अभी भी भूखे नंगे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपने कह दिया इट्स ए नेशनल शेम दैट 42% ऑफ आवर चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। लेकिन ये कहने के बाद क्या कोई इच्छा शक्ति दिखाई पड़ रही है देश में? कोई पॉलिटिकल विल दिखाई पड़ रहा है कि हर बच्चे को अच्छी रोटी मिलेगी, अच्छा कपड़ा मिलेगा, अच्छा स्कूल, अच्छी किताब, अच्छा खेल का मैदान, अच्छा खेल का सामान मिलेगा? इसकी कोई उम्मीद जगी क्या? कुछ नहीं। एक स्टेटमेंट, उसके आगे नहीं पीछे नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं इसके लिए। यदि ये नेशनल शेम है कि 42% चिल्ड्रन रात को भूखे पेट सोते हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? Who is to be held accountable? कोई नहीं। सब तमाशा रोज की तरह चल रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च हो रहे हैं, सरकारें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, लेकिन कोई भी चुनाव अभी इस समय जब हमारा आप यहां इकट्ठे हैं, 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं, 5 स्टेट्स में, और खुद प्राइम मिनिस्टर से लेकर के सारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स घूम रहे हैं वोट मांगने के लिए। एक भी स्टेट में चाइल्ड लेबर फ्री करना, टोटल एजुकेशन, कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करना किसी भी मैनिफेस्टो में आपको नहीं मिलेगा। ये हमारे देश का हाल है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा, 1950 में संविधान देते हुए कहा 10 साल के अंदर अंदर हर बच्चे का मौलिक अधिकार होगा शिक्षा, आज वो सपना हम पूरा नहीं कर पाए। महात्मा गांधी के सपनों का भारत हम नहीं बना पाए। शहीद आजम भगत सिंह को, उसकी कुर्बानी को, उनकी शहादत को, उसके साथ हम न्याय नहीं कर पाए। कहने का मतलब ये कि देश में आजादी के बाद जो काम होना चाहिए था वो रुका हुआ पड़ा था। एमबी फाउंडेशन ने एक विनम्र प्रयास किया, एक बहुत मॉडेस्ट, एक हम्बल एक इनिशिएटिव लिया, एक्सपेरिमेंट किया। इससे पहले लोग सरकारी स्कूलों को गाली दे देते थे, टीचर्स को गाली दे देते थे और सरकार को गाली दे देते थे और कुछ नहीं होता था। लेकिन एमबी फाउंडेशन ने कहा नहीं, हम गांव-गांव में जाएंगे, उन बच्चों को कुछ दिन अपने पास ब्रिज कोर्स में रखेंगे। मैं गया कई स्कूलों में ऐसे, कई साल पहले मैं तांडूर भी गया, मैं 2004 में भी आया आपके कार्यक्रम में। लेकिन मैं इन सारी चीजों को करीब से देख रहा हूं, मैं एक सतत साधना के साथ, तपस्या के साथ आज आप यहां पहुंचे।